Okay, so a very good evening, all of you. We will start the today's session, that is session related to Master Roads number 4. As all of you know, uh, that this session is related to irrigation, right? So we'll discuss what are all the basic things in this session, right? So uh, what are all the things you need to focus here? We will discuss it over today so that you do not have any confusion regarding these topics and you can easily score whatever the question they ask from this topic. So अगर आप इस topic को ध्यान से देखो, if you see carefully this topic, there are not too many things you need to refer. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स व्हाट यू नीड टू रेफर. तो कौन कौन सा पॉइंट देखना है वो हमें पहले सिक्वेंशियली समझ लेना है. वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड सिक्वेंशियली व्हाट आर ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स वी नीड टू फोकस अपॉन फॉर दिस chapter especially related to irrigation, because every year, as you know, that from irrigation they are asking question. 1-2 question you will get from static part and 1-2 question you can get from the current affairs part related to irrigation. So when we talk about current affairs part, the question is basically from which part? It is related to the irrigation related schemes. ये आपको पता होना चाहिए. So now coming on to this chapter related to the irrigation. This chapter is related to irrigation. So we will see what are all the basic things. देखिए, जब भी आप सोचते हैं, whenever you think of irrigation, the first thing we need to know what does we mean by irrigation. We'll come to this, but we'll start with first concept, that is concept number 1, that is scarcity of water. ठीक है, क्या आप समझते हो scarcity of water से? Who defines this scarcity of water? किसने किया है वो आपको समझना है. Once you have water with you, once you have water with you, what do you think? You think of the water sources as given in the syllabus. Water source के बारे में आप सोचते हो. Once the water source part is with you, then what do you think of? आपके पास अब पानी आ गया. Now you think of irrigation, right? Once you have irrigation with you, then what do you think of? Once you have water, you think of irrigation. Irrigation आपके पास आ गया, तो what do you think of now? The quality of water that is with you. Is it okay for the irrigation purpose? The quality of water for irrigation purpose, right? Once the quality of water you have checked in, now you go for the different methods of irrigation. Methods of irrigation, we'll see. Now you have methods of irrigation. You apply water to the soil. Once you have applied water to the soil, then you will see how the soil is behaving, how much water it is retaining, how much water it is percolating below the ground. So you will see the behavior of water in soil. Behavior of water in soil. Now once the water has reached to the soil and you have also studied about the behavior of soil, now you will see how the plant which is growing in the soil, how the plant which is growing in the soil, it is responding. So what you will study here, crop water requirement, CUWR. So now once you have studied about the crop water requirement, now you will study the overall aspect. What is the overall aspect? The command area development plus irrigation projects, right? Once you have studied about this irrigation, command area development, irrigation projects, now you will come on to the soil and water conservation, soil plus water conservation, right? And after ये सारी चीजें जब आप पढ़ लेंगे, now you will see what the government has done, what government of India has done, or it has taken different initiatives, कुछ different initiatives लिए through schemes. Basically, we'll study PMKSY in this. And lastly, you will study the miscellaneous part, जहाँ पे हमने कुछ चीजें देखेंगे, like we will study the पानी पंचायत, right? पानी पंचायत के बारे में देखेंगे, participatory management के बारे में, irrigation participatory management. These are all the miscellaneous things we'll lastly see. So this is overall a brief view in front of you what you want to study in this chapter, that is called irrigation. And syllabus में भी इसी तरह से सारी चीजें mention करी गई है. तो syllabus में जो भी चीज mention किया जाता है, they do not give it randomly. There is some sequence at every part of the syllabus. If you try to analyze the overall syllabus, you will see that each and every
topic of the syllabus is linked with one another, and is this sequence, if you go through like this in sequence only, you will be able to recollect everything in the examination. आपको अच्छे से चीजें याद रहेंगी, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, that you can retain for the much longer time. Many students complain that we are not able to retain the things, we are not able to comprehend the things. कारण यही है, the reason is that you are not reading everything in a sequential manner. So always try to whatever you read, ठीक है, जब भी आप कुछ भी पढ़ो तो ट्राई करो कि सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश की जाए ताकि आपको याद रहे, ठीक है. Is the sequence clear with you? What you will be studying in this part? You can comment. Is the sequence okay with you? Is there any problem? Regarding my video? Is it coming? Akshay is saying yes. Or is it okay? I will check my Wi-Fi once. Okay, fine. So, okay, it's okay. So this is the overall view. Now we will see what are all the different things given in the notes, right? We will see that. Now, coming on to the syllabus में ये सारी चीजें mention की गई है. What I discussed just now with you people. Irrigation management we discussed. Type of irrigation is needed, right? Crop water requirement, command area development, different methods of irrigation, and projects जो होते हैं irrigation से related. These are all the different aspects you need to cover. So those who are messaging me that we are not getting the notes, you can download from this Telegram channel. Now coming on to the start of this. So yes, so water sources, nothing much to cover. इसमें ज़्यादा कुछ cover करने की आपको ज़रूरत नहीं है. Water sources दो parts में categorize कर दिए गए हैं, surface water and subsurface water, right? ये दोनों parts major हैं. इससे related कुछ मैंने newspaper से points लिए हैं जो editorials में आते रहते हैं. इन सारे points को मैंने यहाँ पे compile करके आप लोगों को दे दिया है, and इन सारे points को आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक है? जो भी water budget से related चीजें हैं, that you need to cover. Now here is the news that Haryana and Punjab has exploited 94% of their groundwater resources. Now अगर आप इस चीज को थोड़ा सा relate करने की कोशिश करो, a article came in the PIB पे एक article आया था related to groundwater exploitation. Groundwater exploitation. So if you can recall, a question can be framed: how many, as per Central Groundwater Resource Board (CWGB), Central Groundwater Board, how many states of India are facing this over exploitation of water? How many states in India, as per CWGB, how many states of India are facing the problem of over exploitation of groundwater? Just this is a yes, 17. Soumya is saying, Raja is saying 17. 17 is the right answer. So इस तरह से, why I have asked this question? In this way, you need to link upon the topics which they are giving in the PIB, and the static part को इस तरह से आपको relate करके देखनी और पढ़नी है सारी चीजों को, ताकि इस तरह के question if they ask, you can easily answer all such type of questions, right? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. ये वाला पार्ट हो गया. ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन से देख लेना आपको. जो मैं सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, हाउ डू यू डिफाइन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर? How do you define the scarcity of water? So this definition has been given by UNDP. It says that 1000 cubic meter. How much? 1000 cubic meter per capita per annum. इससे अगर कम वाटर हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर स्कैर्स सिचुएशन. वाटर स्कैर्स सिचुएशन. अगर इससे ज्यादा हो तो दैट इज ओके, ठीक है. तो इससे रिलेट करके नाउ यू कैन गेट अ क्वेश्चन एज पर PIB आर्टिकल. अगेन इसको हम फिर से PIB आर्टिकल से रिलेट करते हैं. व्हाट इज द right now availability of water per capita per annum? 2011 census के हिसाब से what is the per capita water availability? Richa is saying 1545. Sumit is saying 1486. So as per Sumit, Richa is saying, right, as per 2011 census, clear कर लीजिए इसको, that is 1585 or 45, whatever it is, 1500 something is as per 2011. But when we talk about 2021 data, 2021 में कितना होगा? Then what you are saying, that is correct. 1486, it is by 2025 I think data. ठीक है, तब ये थोड़ा सा घट जाएगा.
and by 2050 this data also they have given, it is around 1250. So by 2050 you can say that this situation of scarcity of water will not arise as per that data, but we do not know what will happen in the future. तो इसको very clearly you need to understand 2011 सेंसस के हिसाब से कितना है, 2025 में कितना है, and 2050 में कितना है, ये तीनों डेटा को एक्सट्रापोलेट करके ऑलरेडी दे हैव कवर्ड ए वेरी गुड आर्टिकल इन दी पीआईबी. तो आपको ये चीज अच्छे से समझ लेनी है. दे कैन डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now coming on to the main part, what we are talking about, irrigation. Irrigation, right? Okay friends, so sorry for the interruption. So we were discussing about the irrigation part. Irrigation से आप समझते हैं क्या? What do you mean by the term irrigation? तो यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि the first word is I, that means the input of water. That means the input of water. What is input of water? It is artificial application of water. The word is important. It is artificial application of water. ठीक है, आप artificially apply कर रहे हो water को. Now here important question again comes in front of you. Every time you're hearing the word irrigation, 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 but what is the criteria for defining the term irrigation? Who will comment in the comment box? What is the criteria for defining the word irrigation? Anybody? Basic question from NCERT. If you're covering NCERT, basic question. This is from NCERT. How do you define the word irrigation? If you've gone through the disaster management chapter of NCERT, there they have defined in 2 lines how you say that this area is irrigated or not. So as per the NCERT definition, if you have say 10 hectares of land in a village, if you have 10 hectares of land in a village, and out of this 10 hectares, 30% of this area, gross cropped area, is irrigated, then the government declares this area as irrigated. It is not necessary that all the 10 hectares of gross cropped area shall be irrigated by water. The cutoff they have taken is only 30%. If it is irrigated, then they declare the overall area as irrigated. Is it clear to you? How do they define the term irrigation in terms of percentage? Is it clear to you? I will proceed further. If it's not clear, then I will stop and explain again. Okay, yes. You should comment at least yes or no. I can understand you are not understanding or not. Everybody is saying yes, I will proceed. So this is the standard definition as given in NCERT. How do we define a irrigated area? ऐसा नहीं है कि सारी के सारे जगह ठीक है उसमें पानी आ रहा है तभी हम उसको irrigated बोलेंगे. अब इसी से आप समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम करती है कि इतना एरिया इरिगेटेड है, तो आप समझ सकते हो कि जस्ट ये क्राइटेरिया लेके ही शायद वो डिफाइन करते होंगे. तो जो हमें दिखता है वो एक्चुअली होगा नहीं एक्चुअली, राइट? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू द इरिगेशन मैनेजमेंट. बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, बोल बच्चन है. यू कैन इजिली एक बार पढ़ोगे समझ जाओगे. इससे कुछ क्वेश्चंस दे फ्रेम, इट विल बी वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, खुद से आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हो. बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी, जो ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, तो कुछ भी यहाँ पे समझाने लायक या बताने लायक नहीं है. नाउ कमिंग ऑन टू सर्टेन फैक्ट्स आई हैव टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाटर बजट वाला जो फैक्ट है 4000 BCM वाला. ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है. ये आप थोड़ा सा देख लेना जो डिफरेंट डेटास दिया हुआ यहाँ पे, वो जो हमने भी डिस्कस करा, बात 1 2 3 5 होगा, 2014 तक कितना है. तो ये सारी फैक्ट्स जो आप देख लेना, क्योंकि पीआईबी में कुछ दिन पहले आया था और आईसीआर में भी किसी मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी, तभी वो पीआईबी के एक आर्टिकल में आया था. इफ यू सर्च इन द पीआईबी यू विल गेट इजीली दिस टॉपिक. नाउ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ओवरऑल इरिगेशन, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, ये भी पीआईबी में कवर किया हुआ है कि वहां पे जो हमारा एफिशिएंसी है 38% है एफिशिएंसी ओवरऑल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे गिव कि जितने भी वट एवर द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वी आर हैविंग इन इंडिया, मेजर, मीडियम, माइनर, तो देयर एफिशिएंसी इज जस्ट 38%. सी 50% मार्क भी ये रीच नहीं कर रहा. जस्ट 38% इज द ओवरऑल एफिशिएंसी.
और ये जो कुछ हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं इरिगेशन से, इसको भी आप थोड़ा सा परसेंटेज देख लीजिएगा. दिस परसेंटेज हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे में भी ये सारे परसेंटेज मेंशन्ड है, और बीच बीच में जो पीआईबी के आर्टिकल्स आते रहते हैं उनमें भी सेम ये परसेंटेज वो यूज करते हैं. तो हो सकता है कभी क्वेश्चन फ्रेम कर दे, बट मे भी ना करे. तो एक बार रीड आउट कर लेना ताकि ऑप्शंस देख के यू कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग. नाउ कमिंग ऑन द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड को के तौर पे मैंने क्लासिफाई किया है. तो ये मेथड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस टू आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर दे आर आस्किंग मेनली दी क्वेश्चंस. मॉडर्न मेथड से ड्रिप एंड ओवरहेड स्प्रिंकलर जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों मेथड से वो बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो एक पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया वो याद रखिएगा आप. चेक बेसिन पे जो चेक बेसिन इरिगेशन मेथड होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है दिस वन, कि जो बेसिन का साइज होता है वो कितना होना चाहिए, दैट इज 10 मीटर स्क्वायर टू 25 मीटर स्क्वायर. ये आप बस याद रखिएगा ट्रेडिशनल मेथड में. बाकी जो भी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे दे विल फ्रेम फ्रॉम द मॉडर्न मेथड्स ओनली. ठीक है, इनको बाकी सबको आप एक एक बार पढ़ लेना. जैसे रिंग इरिगेशन जो है, मेनली दे आर यूज्ड फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ये ज्यादातर यूज होते हैं, या फिर गार्डनिंग में यूज होते हैं ज्यादा. लैंडस्केपिंग पर्पस के लिए रिंग इरिगेशन बेसिकली ज्यादा यूज होते हैं. सर्ज इरिगेशन, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा. इसे ऑन ऑफ इरिगेशन कहा जाता है बिकॉज द वाटर सप्लाइज इंटरमिटेंट. द कीवर्ड इज इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर. तो दे कैन गिव द डेफिनेशन, द इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज मेथड ऑफ विच इरिगेशन. तो आपको याद रखना है इंटरमिटेंट जहां दिख जाए तो यू कैन गो फॉर द सर्ज इरिगेशन. एंड इसके एफिशिएंसी को भी आप याद रखिएगा बिकॉज प्रीवियस ईयर विल सी द नाबार्ड क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस. इससे पहले उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के एफिशिएंसी से पूछा था अप टू कितना परसेंट होता है, तो इट वाज 95% वाज द आंसर. तो पहले ड्रिप से पूछ लिया हुआ, सो में दे कैन आस्क फॉर द सर्ज इरिगेशन से वो एफिशिएंसी पूछ सकते हैं. ठीक है, ये आपको देख लेना. तो डिफरेंट मेथड्स के पिक्चर्स एक बार देख के आसानी से आप याद कर सकते हो. मॉडर्न मेथड देखो, यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होते हैं कि किस स्टेट में मैक्सिमम एरिया है, किस में मिनिमम है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है. तो यहाँ पे देखो दो क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमें एरिया को याद रखना है. एक तो PMKSY जब से आया है 2014-15 के बाद, उसके बाद जो रैंकिंग्स आ रहे हैं, दोज रैंकिंग्स आर एज पर PMKSY कवरेज. तो उसको हमको अलग से याद रखना है, दैट वी नीड टू रिमेंबर सेपरेटली. एंड ओवरऑल एरिया जो है since the time beginning, उसको आपको अलग से याद रखना है. तो ये जो यहाँ पे आप लोगों को मास्टर नोट्स में ये दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, ठीक है, ये डेटा है. इसमें अगर आप इफ यू गो थ्रू दिस डेटा यू विल फाइंड दिस फिगर्स दैट मैक्सिमम एरिया इन ओवरऑल इरिगेशन इज फॉर राजस्थान, मैक्सिमम एरिया इन ड्रिप इरिगेशन आंध्र प्रदेश, एंड मैक्सिमम एरिया स्प्रिंकलर इज फॉर राजस्थान. बट अगर हम PMKSY की बात करें, फिर वहां पे थोड़ा सा डेटा रैंकिंग्स में चेंज हो जाता है, जहां पे कर्नाटका टॉप करता है. तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन फ्रॉम विच बेसिस दे आर आस्किंग. जिस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न होगा उस हिसाब से आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. तो दोनों चीज मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया. इफ दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ PMKSY रैंकिंग, आंसर इन टर्म्स ऑफ दैट. If they are not mentioning anything, then answer in terms of this data, whatever the Department of Agriculture has given as on March 2018. इस टेबल को आपको यूज करना है. इस टेबल में सारे स्टेट्स के एरिया ड्रिप में भी दिए हुए हैं, स्प्रिंकलर में भी दिए हुए हैं, एंड टोटल भी दिए हुए हैं. तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, दैट यू कैन कवर इजिली. नाउ ड्रिप इरिगेशन जो है हर साल क्वेश्चन आता है, तो किसने डिस्कवर किया ड्रिप इरिगेशन, कहाँ से आया, ये सबको आप लोगों को पता होगा. ठीक है, इजराइल से आया. ठीक है, सिमका ब्लॉक्स नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रिप इरिगेशन में. बस इतना आपको याद रखना है. इसके एफिशिएंसी को याद रखना है जो कि पहले पूछ लिया गया, 95% तक है. ठीक है, और यहाँ पे जो है एमिटर्स से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं. जो एमिटर्स का रेंज है दैट इज 2 to 10 लीटर पर आवर के हिसाब से जो एमिट करता है ड्रिप होता है वाटर. ठीक है, फ्रॉम देयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन. तो इस डेटा को थोड़ा सा याद रखिएगा, एमिटर्स वाले डेटा को. यहाँ से बहुत से टाइम बहुत एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे आपको याद रखना है. नाउ स्प्रिंकलर इरिगेशन टेस्ट में, इन टेस्ट आई हैव गिवन अ सिंपल क्वेश्चन that where we are basically using a sprinkler irrigation. If you go to the southern part of India, there we have coffee plantation. तो जहां भी undulating land हो तो वहीं पे तो स्प्रिंकलर इरिगेशन काम करेगा ना. अनड्यूलेटिंग हो तो दे विल सर्कुलेट इन द ऑल डायरेक्शन, इट विल स्प्रेड ए यूनिफॉर्म वाटर टू एवरीवेयर. बिकॉज इफ द लैंड इज अनड्यूलेटिंग, ड्रिप इरिगेशन विल नॉट वर्क देयर. ड्रिप इरिगेशन विल नॉट बी अ बेटर ऑप्शन. सो सिंपल है. सो वी आर यूजिंग बेसिकली इन द प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक कॉफी. ठीक है, जहां पे अनड्यूलेटिंग लैंड हो, हिली एरियाज, टी, कॉफी, वहां पे हम यूज करेंगे
किसको, स्प्रिंकलर इरिगेशन को ज्यादा यूज करेंगे। या फिर सैंडी एरियाज में, राजस्थान में क्यों इतना ज्यादा स्प्रिंकलर है, क्योंकि वहां भी क्या है, सैंडी एरिया के चलते वहां ड्रिप ज्यादा काम नहीं करेगा, वहां स्प्रिंकलर ही काम करेगा। तो थोड़ा सा आपको अपने एंड पे भी थोड़ा सा सोचना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देन यू ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट। somebody undulating crops and undulating crops and undulating plantation नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। अगर मान लो हिली एरियाज है, जैसे कॉफी प्लांटेशन आप ले लो, सदर्न पार्ट ऑफ कूर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका, देयर वी हैव कॉफी प्लांटेशन, वहां पे हिली एरियाज है, ठीक है, ऐसे प्लांटेशन हो रहा है, टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या है, स्प्रिंकलर विल वर्क इफेक्टिवली, यूनिफॉर्म स्प्रिंकल होगा वाटर चारों तरफ। तो अनड्यूलेटिंग प्लांटेशन नहीं है, प्लांटेशन इज ए कैटेगरी जहां पे आप एक्सपेंसिव क्रॉप्स प्लांट करते हो, दैट इज प्लांटेशन। अनड्यूलेटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट टोपोग्राफी। इज इट राइट रिचा? Undulating is topography, not crop. Okay. उसी तरह से ठीक जैसा हमने ड्रिप में देखा, इसमें भी इसके कंपोनेंट्स है, पंपिंग यूनिट है, पाइपलाइन है, स्प्रिंकलर्स है, तो ये सब सारे देख लीजिएगा, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना आपको। स्प्रिंकलर में जैसा वहाँ पे एमिटर के रेट को देखा, यहाँ पे हम देख लेंगे स्प्रिंकलर में कितने प्रेशर से जो वाटर एमिट होता है, वो आप थोड़ा देख लेंगे। एप्लीकेशन रेंजेस फ्रॉम 1.25 टू 5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, इस डेटा को आपको याद रखना है। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट, जब भी हम इरिगेशन की बात करते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके यूनिट को याद रखना है आपको, ठीक है। रागी एंड वीट में जो होता है, इसको इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है। व्हाट इज वाटर यूज एफिशिएंसी? अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, कि आप कितना पानी दे रहे हो, कितना एफिशिएंटली प्लांट इज कन्वर्टिंग दैट वाटर टू यील्ड द बायोमास, राइट। उसी से ये बनाए, कितना केजी बायोमास आ गया तो केजी आ गया, कितने हेक्टेयर में दे रहे हो, कितना मिलीमीटर पानी दे रहे हो, तो केजी पर हेक्टेयर पर मिलीमीटर इज द यूनिट फॉर वाटर यूज एफिशिएंसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन इरिगेशन चैप्टर, दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming on to the per drop more crop, इसके असिस्टेंस को आपको याद रखना है। 55% जो है वो असिस्टेंस है, और 45% जो 55 है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए। तो वहां पे डोंट कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन। फॉर स्मॉल फार्मर्स यू सी व्हाट दे आर आस्किंग स्मॉल फार्मर्स, और दे आर आस्किंग फॉर अदर कैटेगरी ऑफ फार्मर्स। तो स्मॉल एंड मार्जिनल के लिए आपको याद रखना है अलग से, एंड फॉर अदर कैटेगरी ऑफ फार्मर्स के लिए ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है। कब आया दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, 2015-16। one more question is related to this one, micro irrigation fund, right? MIF. Here it is written rupees 5,000. But if we'll go through the budget, this data has changed. What is the data right now for micro irrigation fund? Nishant Rija, yes, it's 10,000. They have doubled the fund. For micro irrigation fund, right? So question you need to very carefully you need to read. हो सकता है एग्जामिनेशन में दे में आस्क विद द टर्म एडिशनल फंड, तो वहां जल्दीबाजी में हमें 10,000 टिक नहीं कर देना। अगर एडिशनल पूछे तो फिर भी 5,000 स्टार्ट आएगा। विथ व्हाट कॉर्पस डिड दे स्टार्टेड, फिर भी 5,000 आएगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा वर्ड्स को, क्या पूछ रहे हैं, देन यू ट्राई टू आंसर। अगर टोटल पूछ दे देन यू गो फॉर 10,000, एडिशनल पूछ दे देन यू गो फॉर 5,000। तो इस तरह से एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन में, वही नेगेटिव हो जाता है, और 0.25 मार्क्स से भी आप सिलेक्शन को मिस कर सकते हो। तो ईच एंड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Now what we are talking about, quality of very important. This question they are asking, ये मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो स्पेशली आपको सब याद ना रखो, कोई टेंशन नहीं है। पीएच वाला ये आपको एटलीस्ट याद रखना है कि पीएच के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वाटर का वो कितना कितना है। तो 6.5, जब भी इस तरह के टेबल आपको याद रखनी है तो हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट डेटा को आप ध्यान में रखो, ठीक है। फर्स्ट एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6.5 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, 10 पे एंड हो रहा है। एज पर दैट यू ट्राई टू जस्ट क्लोज योर आइज एंड सी दी डेटा वंस। तो क्या हो गया, एग्जामिनेशन में अगर मान लो फेयर भी उठा के दे दिया, ठीक है, तो वहां भी आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि हाँ थर्ड कॉलम पे था फेयर, तो इसका वैल्यू 6.5 से स्टार्ट हुआ था, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, यू कैन इजीली सॉर्ट इट आउट विद द ऑप्शंस, ठीक है। तो 8 से 8.5 वाला जो वैल्यू है दैट इज फेयर, 7 2.5 to 8 इज गुड। तो इस तरीके से जो भी क्लासिफिकेशन है, एटलीस्ट पीएच सब याद ना रखो तो कोई बात नहीं, पीएच वाला आपको जरूर से याद रखना है कि इरिगेशन जो क्वालिटी है पीएच के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा।
Now coming on to the irrigation terminologies, important but very easy है, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है. Basically what is it? It is related to input and output what you are getting. कितना पानी दे रहे हो, इस पानी से आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, मीन्स yield of crop. तो इसी को हेर फेर करके थोड़ा बहुत करके चेंज करके दिया गया सारे टर्मिनोलॉजीज दैट यू नीड टू कवर. अब वाटर यूज एफिशिएंसी वाला देखो, इसमें इंपॉर्टेंट जो है that is what I will say. This one, field water use efficiency is very important over here. Crop water use efficiency is important over here, right? And one more is there, irrigation efficiency. ये तीनों at least इसके formulas को आप देख लीजिएगा. Definition based question they will give. इसको basically वो उठा के दे देंगे and they will ask which efficiency this definition is talking about. तो अगर आपको clear होगा, एक एक बार पढ़ लोगे तो you can find it out which efficiency they are talking about. ठीक है? Not very difficult, very easy. In most irrigation project, the irrigation efficiency ranges from इस range को आपको साथ में याद रखना है. ठीक है? They will ask this question कि most of the irrigation projects में जो है irrigation efficiency कितना होता है, 12 to 34%. That's why you have seen. Now इसको current से relate कीजिए, जो भी हम पढ़ रहे थे, जो major and minor के जो irrigation projects के efficiency हम बात कर रहे थे, कितना 38% है. इसी से static से आप relate कर सकते हैं इस current data को. 12 to 34 they are asking. And 38% is the given as by the government of India जो data दे रही है. Now coming on to the water requirement of important crops. हमने देख लिया different methods of irrigation, देख लिया irrigation क्या होता है, हमने देख समझ लिया. ठीक है, सारे components को देख लिया, पानी कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, different types. अब देखते हैं crop water requirement जो कि बहुत important है आपके examination के लिए. देखो इससे basically question क्या आएगा, crop water requirement के basic understanding को आप समझ लो. नाम ही है requirement. तो इसमें भी many of you have made a mistake in the assessment test. Name only indicates what will the answer. Requirement, तो requirement तो हर तरीके की हो सकती है ना. Application loss हो रहा है, special needs of the plant like transplanting, leaching, हर कुछ आ रहा है. तो इसमें सब कुछ सारे components जो होंगे, evapotranspiration से जो आप loss हो रहा है, तो everything will come under the CWR, that is crop water requirement. तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो word को पढ़ के भी you can mark the right answer. That's why I'm saying always try to understand the things. थोड़ा सा understand करोगे तो इससे थोड़ा सा घुमा के भी question if they give, you can answer it very easily. So this is important. Now coming on to the rice, very important. They will ask for major crops. You need to remember the crop water requirement for rice, wheat, maize, and some of the important efficient crops like ragi, pulses, plus one more is sugarcane. इनके रिक्वायरमेंट्स आप एटलीस्ट याद रखिएगा, प्लस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी देख लीजिएगा कि किस क्रॉप का मैक्सिमम है, किस क्रॉप का मिनिमम है. दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर आल्सो. तो इंडिविजुअल आपको इन क्रॉप्स के याद रखना है CWR को, प्लस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यू नीड टू रिमेंबर. और जब राइस की बात आती है तो आई हैव टेकन सम ऑफ द पॉइंट्स, आई विल जस्ट डिस्कस विद यू, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स इफ दे आर सिटिंग आउट ओवर हियर. तो ये क्वेश्चन आप देख लो, समझ लो. सबसे पहला पॉइंट आई विल डिस्कस यू फ्रॉम दिस इज, देखो एक पॉइंट में हमेशा कंफ्यूजन होती है आप लोगों को, एंड दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फॉर द ऑल द स्टूडेंट फॉर जर्नलिस्ट स्ट्रीम ओनली. वाटर डेप्थ का वैल्यू कितना होना चाहिए फॉर पैडी कल्टीवेशन, वाटर डेप्थ. इससे रिलेटेड विल क्लियर टुडे सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक अगेन. दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द अर्लियर ईयर्स. What is the minimum water depth required? It's just saying 5 to 10 centimeter. Anybody else who will try to give us some further clear explanation? When do we require 5 centimeter? When do we require 2.5? दो data बहुत important है TNU point of view से. You will get that is 2.5 centimeter and 5 centimeter. Sorry, ये दोनों values बहुत important है. कब 2.5 centimeter होगा, कब 5 centimeter होगा, clear कर लो. Pulkit is saying 5 centimeter in puddling. चलो ओके, 2.5 सेंटीमीटर आफ्टर puddling. देखो जो 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है वो होता है तुम्हारा ट्रांसप्लांटिंग तक के लिए. जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो पैडी को तब तक के लिए जो होता है 2.5 सेंटीमीटर हम लेते हैं. वंस यू हैव ट्रांसप्लांटेड और 7 days निकल जाते हैं, आफ्टर दैट दिस सबमर्जेंस लेवल शुड बी अप टू 5 सेंटीमीटर. इससे ज्यादा हो तो ठीक है, बट इट शुड बी आफ्टर दैट 5 सेंटीमीटर. तो टिल ट्रांसप्लांटिंग स्टेज क्लियर कर लीजिए, द डेप्थ शुड बी 2 to 2.5 सेंटीमीटर.
after 7 days of transplanting the depth should be maintained at 5 centimeter. ये आपको क्लियर रखना है. दोनों बेसिस पे they can give the question in the examination. एंड ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस पे क्लियर रहिए आप और इसको याद रखिएगा अच्छे से. 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के कंसेप्ट को, इज इट क्लियर? द कंसेप्ट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. यस, नो? ओके, अपूर्व इज सेइंग यस, रिचा सेइंग यस. ओके फाइन. अब देखिए और एक दो पॉइंट्स मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं. देखिए यहाँ पे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कितना लिखा हुआ राइस का? 1100 से 1250. Now you have, if you have pen paper with you, now if you have pen paper with you, please note it down. Please note it down. Very important point I am saying. Till nursery management, the requirement is 40 mm. ठीक है? For land preparation, it's 200 mm. For field irrigation, it's 1000 mm. तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 1240 mm. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि why we are taking this value 1100 से, that is 1100 to 1250 means different. Why we are taking this value? देखिए इस वैल्यू को सबसे पहले देखिए 1250 mm. Why they have given this value 1250 mm in crop water requirement? Because this value comes through different stages of cultivation. The first stage we are taking it as nursery management. You are growing the seedlings in the nursery. There you require 40 mm of water. For nursery management, you require 40 mm of water, right? For land preparation, you need 200 mm of water. 40 plus 200, 240. For field irrigation, the last is field irrigation, you require 1000 mm of water. So total it comes around 1240 mm or 1250 roughly they have given. So that's why the value comes out to be 1250 mm. A question can be asked, which of the following stages have maximum crop water requiring? Nursery management, land preparation or field irrigation? So what will be the right answer? What will be the right answer? Please comment. Nishant is saying field irrigation. Yes, field irrigation requires maximum water. वहीं यहाँ पे भी लिखा गया है आपके मास्टर नोट में that 81% और 1000 mm for the field irrigation of the crop. ना ही हमें नर्सरी मैनेजमेंट में उतना पानी लगता है, ना ही हमें लैंड प्रिपरेशन में उतना पानी लगता है. We need maximum water for what? We need maximum water for field irrigation of the crop, that is 1000 mm or 81% of the total water crop water requirement for the paddy. Now is the concept clear to you? What is the CWR and in which stages we require how much of water for paddy? Akshay, is it clear? Okay, तो ये क्वेश्चन किसी तरह से भी आपको घुमा के फ्रेम किया जा सकता है, मैंने बता दिया. एक और क्वेश्चन यहां से मैं बता दे सकता हूं, that they also can ask. This value 1250 is given for simple rice cultivation, जो ट्रेडिशनल मेथड से हम करते हैं. But if we take SRI method of rice cultivation, then what will be the value of CWR? If we talk about SRI method, what will be the value of CWR? Very important. Anybody will comment? What will be the answer for this? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया क्वेश्चन को. The answer will be near about half, that is 750 mm. 700 to 750 mm value होगा इसका. लिख लो, नोट कर लो if you have notebook with you. In normal cases, it's 1100 to 1250, but in case of SRI method, this CWR reduces to 700 to 750 mm. आपको ये याद रखना है. थोड़ा सा और मैं एक स्टेप बढ़ के बता दे रहा हूँ फॉर स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स. इफ दे आर सिटिंग एग्रीकल्चर डिसिप्लिन से अगर कोई दे रहा है तो इफ यू हैव नोटबुक प्लीज मेंशन कर लीजिए एक बार. थोड़ा सा और इलेबोरेट ब्रेकअप दे रहा हूं मैं. नर्सरी मैनेजमेंट 40 mm. Nursery management 40 mm, main field preparation it's 200 mm, planting to panicle formation it's 458 mm, panicle to flowering it's 417 mm, and from flowering to maturity it's 125 mm. So specialist students can remember this breakup also. They can ask question from here also. Nursery, I am repeating once again. थोड़ा सा सुन लो ना, जनरल वाले भी सुन लो थोड़ा सा. नर्सरी के लिए 40 mm, मेन फील्ड प्रिपरेशन के लिए 200 mm,
Planting to panicle is 458 mm. Panicle to flowering is 417 mm. And lastly, flowering to maturity is 125 mm. Now, a question for the generalist students. A question for the generalist student. ये सारे जो मैंने 5 stages बताए हैं, what do you call in a combined, एक single term में क्या बोलोगे this stages? What you will call this stages? Please comment. एक अगर मैं single term में पूछूं, what are all these stages? What you will say? जो मैंने वैल्यूज अभी बताया, इस स्टेज में इतना इरिगेशन होना चाहिए, एक सिंगल वर्ड में आप बताओ. वेरी गुड. आशीष इज सेइंग क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन. वेरी गुड. तो इस टर्म को भी याद रखिएगा. दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल इरिगेशन फॉर पैडी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जर्नलिस्ट को ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर पैडी? नाउ दीज आर द 5 क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन ऑफ द पैडी, जो मैंने अभी आपको बता दिया है. ठीक है. और एक टर्म आपको वैल्यू याद रखना है, और एक वैल्यू आपको याद रखना है जो डेली कंजम्पशन होता है वाटर को. डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर. डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर इज हाउ मच? 6 to 10 mm. इतना वाटर डेली कंज्यूम होता है. ये वैल्यू भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में. क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट फॉर डेली कंजम्पशन पैडी इज 6 to 10 mm. आपको ये याद रख लेना है. ठीक है. ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स थे जो पैडी से इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट. इसी तरह से अगर हम आते हैं, वन मोर क्रॉप इज देयर, जस्ट अ सेकंड, या आई हैव रिटन समवेयर. यस, वीट पे अगर हम आ जाते हैं. वीट. नाउ कम ऑन टू वीट. वेरी इंपॉर्टेंट. वीट पे अगर हम आते हैं तो जनरली 4 to 6 इरिगेशन, नोट कर लीजिएगा प्लीज. 4 to 6 इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, बट मिनिमम नंबर, इफ दे आस्क minimum number of irrigation in wheat, then you write it as 5. If they ask the range, then the answer will be 4 to 6. If they ask minimum, then will be the 5. Then अगर अब बात आती है कि which 5 we are talking about, please note it down. Please note it down which 5 we are talking about. First is immediately after sowing. Immediately after sowing. Next stage is very 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 important for all the students. That is crown root initiation stage. CRI stage, you know this question is very important. Which is that day? How many days after sowing for crown root initiation stage in wheat? Pulkit is saying 21. 21 is okay, but if Pulkit we talk about the range of this CRI, then you must remember it is 15 to 20 DAS. ये क्वेश्चन डेफिनेटली दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स. क्राउन रूट इनिशिएशन इज रिलेटेड टू व्हिच क्रॉप? द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हीट. अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए, दे विल आस्क दिस डेज, हाउ मेनी डेज आफ्टर सोइंग? दिस इज आफ्टर 15 to 20 days of saying crown root initiation comes in the wheat. Very 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 important. The next stage is active tillering. Fourth stage is flowering, and last stage is grain filling. So these are the critical stages of irrigation for the wheat. I will repeat. Immediately after sowing, the second is crown root initiation, then is active tillering, फिर active tillering के बाद flowering होगा, फिर flowering के बाद क्या होगा? Grain formation होगा, that is grain filling. तो grain filling वाला बस याद रखिए, last 70 to 75 DAS, days after sowing. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Now coming on to one more crop is very important for you, that is sugar cane. शुगर केन के ग्रोथ स्टेजेस को आपको याद रखना है. दिस दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन. शुगर केन ग्रोथ स्टेजेस, 3 स्टेज आपको याद रखना है. टिलरिंग स्टेज. टिलरिंग स्टेज 36 to 100 days after sowing. टिलरिंग स्टेज. द नेक्स्ट इज ग्रैंड ग्रोथ फेज. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ wheat, similarly grand growth phase is very 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 important for sugarcane. They can ask you question in the examination. Grand growth phase is related to which of the following crop? It is related to sugarcane. ये कब आता है? 101 day to 270 days after sowing. Next is maturity phase. The last phase 271 days से लेके harvesting तक को हम बोलते हैं maturity phase. तो ये 3 स्टेजेस जो शुगरकेन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके ग्रैंड ग्रोथ वाला जो स्टेज है 101 to 270 days, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा. लास्टली द लास्ट क्रॉप आई टोल्ड यू, मेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेज में एक वैल्यू आपको याद रखना है, जनरलिस्ट पीपल.
How many days after sowing is the most important stage for irrigating maize crop? Anybody will comment? Which day after sowing is most important for irrigating maize crop? 30, 40, 50, 60. Anybody with a guess? How many days? How many days? Maize crop is of how many days? Pulkit is saying 50 to 60. Akshay is saying 30. तो आप याद रख लो मेज के लिए जो होता है 45 to 65 day after sowing is most important for irrigation. Most important. Why it is most important? Because flowering takes place in this stage, that is 45th day to 65th day after sowing. तो जो मेज के इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं इनमें से ये वाला स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग वाला, ये आपको याद रखना है. तो इंश्योर एटलीस्ट 4 इरिगेशन इन मेज, और 4 में से ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है. किसी में 2 चाहे नहीं दो, इसमें आपको देना ही देना है 45 to 65 डेज आफ्टर सोइंग, दैट इज द फ्लावरिंग स्टेज. ठीक है. तो इसी तरह से आपको सारे क्रॉप्स के एक बार नजर घुमा लेना किसमें क्या है. ये चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है आपके कन्वीनियंस के लिए, आप इसमें देख लेना. आपको सारे टेबल्स थोड़े ध्यान से देखने, किसमें CWR का वैल्यू मैक्सिमम है, किसमें डेज का मैक्सिमम है, नंबर ऑफ इरिगेशन का वैल्यू किसमें मैक्स है, किसमें मिनिमम है. तो ये थोड़ा सा इस चार्ट में आप देख के थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेना. दे कैन आस्क कि किसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, किसका मिनिमम होगा. तो इस चार्ट से दे कैन आस्क द क्वेश्चन. तो एक बार थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिएगा आप लोग. फर्टिगेशन इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स, एंड इफ योर पीपल आर गिविंग यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट. इसी चार्ट से क्वेश्चन था कि सॉल्युबिलिटी आपको यहाँ पे याद रखना है कि डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा किसका है. जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा दैट इज द बेस्ट सुटेबल फॉर फर्टिगेशन, राइट. यहाँ पे अगर आप देखो 1830 इज द मैक्सिमम वैल्यू किसका है, अमोनियम नाइट्रेट. तो अमोनियम नाइट्रेट इज मोस्ट सुटेबल फॉर फर्टिगेशन. ये वैल्यू आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके देखना है. ठीक है. ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स का है, ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो बहुत इजी है, इसको पढ़ लोगे यू कैन सॉल्व इट. Seasons of rainfall very general, एक एक बार देख लेना, you can cover up. Classification of project, देखो इस क्वेश्चन से भी what question I have given, many people have made a mistake. Why you people have made a mistake? इसलिए क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ये हेक्टेयर में दिया हुआ, all these values they have given in the hectare. So 1 hectare is equal to how many acres? 1 hectare is equal to how many acres? 1 hectare is equal to how many acres? 2.5 acres. Yeah, 2.47 is perfect, but 2.5 आप रफली याद रख सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख लेना एग्जामिनेशन की व्हाट एरिया दे आर मेंशनिंग अबाउट. मान लो यहाँ पे मैं 9000 एकर्स लिख दूं, 9000 एकर्स लिख दूं. ठीक है. तो आप तो सोचोगे कि 9000 है तो इट विल कम इन दिस, यहाँ पे आ जाएगा ये 2000 से 10,000 वाला मीडियम में आ जाएगा. ठीक है. तो साहब सब चेंज करके देख लेना कि एकड़ में दिया हुआ है, हेक्टेयर में दिया हुआ है, उस हिसाब से आप मार्क कीजिएगा. रियली डोंट मार्क द रॉन्ग आंसर कि हेक्टेयर और एकड़ में ध्यान नहीं दिया तो एवरीथिंग चेंजेस. इसमें आप लोगों ने बहुत किसी ने मिस्टेक किया इस क्वेश्चन में. आई हैव जान के मैंने इंटेंशनली उसको एकड़ में दिया था और आपने बिना कुछ देखे समझे ये वाला फिगर आपको 2000 से 10,000 ये वाला याद था, आपने गलत मार्क कर दिया. सो अगेन आई एम सेइंग एग्जामिनेशन में एक एक वर्ड का जो होता है ना इंपॉर्टेंस होता है. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसी तरह से एक एक वर्ड्स आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा एग्जामिनेशन में. एक गलत हो गया 0.25 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे. सीट्स 31 है ऑन रिजर्व कैटेगरी में. ठीक है. 0.25 मीन्स 100 स्टूडेंट्स विल कम अहेड ऑफ यू. ठीक है. तो एक एक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर बजट ये पहले ही हमने डिस्कस किया था. यहाँ पे ये देख लेना कि 2.5 mm से जो नीचे होता है उसको वाटर बजटिंग में हम कंसिडर नहीं करते हैं. ये रेनी डेज से ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन, रेनी डेज से दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन. ठीक है. There are on an average 130 rainy days. ठीक है. जिसमें से कि 75 are considered the most effective for rain. तो ये आपको याद रखना है रेनी डे का, दोनों वैल्यूज आप याद रखिएगा. सरफेस रन ऑफ नॉट सो इम्पोर्टेंट, एक बार देख लेना. ये वाला यहाँ से देखो हर साल से एक ट्रेंड बन चुका है पिछले 2-3 साल से. व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्लासेस ऑफ सॉइल वाटर. तो इसको थोड़ा सा देख लेना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि जो वाटर आपने मान लो सॉइल में डाला, इफ यू pour some water in the soil, right? तो वाटर क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते कुछ नीचे चला जाएगा, उसको सॉइल होल्ड नहीं कर पाएगा. तो सब प्रेशर पे डिपेंडेंट है. तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर विच इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. हाइग्रोस्कोपिक वाटर दो इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल बट इतने स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन फोर्सेस से वो
बाइंड हुए रहते हैं पार्टिकल्स वाटर के सॉइल के साथ कि उसको प्लांट ऊपर अपने सक्शन प्रेशर से कभी नहीं ले सकता है। तो जो फील्ड कैपेसिटी वाला रेंज है उसी में सबसे ज्यादा जो है वाटर अवेलेबल होते हैं प्लांट के लिए। अगर इसके पूरे कंसेप्ट को आपको क्लियरली समझना है तो यूट्यूब में मैंने ऑलरेडी इसको लेके एक लेक्चर ले रखा है, बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है ग्राफ के साथ कि कैसे कैसे ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरी करता है। और मैं बता रहा हूँ पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे सॉइल वाटर से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना और सारे प्रेशर रेंज जितने दिए हुए हैं दैट आल्सो यू नीड टू कवर कि किस प्रेशर रेंज पे कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर विल लाई। ठीक है, तो जैसे कि कैपिलरी वाटर का यहाँ ये रेंज दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल वाटर का ये रेंज दिया हुआ है, दिस रेंज यू नीड टू रिमेंबर। वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सिंपल सा डेफिनेशन दे देते हैं एंड दे आस्क विच टाइप ऑफ वाटर दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो डेफिनेशंस को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मूवमेंट ऑफ वाटर यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, शायद मेंस में पिछले साल इन्होंने परकोलेशन या इनफिल्ट्रेशन रेट से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था इस साल या उसके पिछले साल। तो ये वाला मूवमेंट भी आप सारा देख लेना वाटर का। सॉइल मॉइस्चर मेजर पीएच से, जैसे हम एसिडिटी मेजर करते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन भी मेजर्ड बाय पीएफ वैल्यू। yes, this one I was talking about, fill capacity हो गया, permanent wilting point हो गया, moisture equivalent हो गया, इन सारे definitions and ranges को आप बिल्कुल देख लीजिएगा। important terminologies, yes, this one, water intake क्या होता है, percolation क्या होता है, interflow क्या होता है, seepage क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ साल से, तो इन definitions को you need to cover seriously। क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन रिपीटेशन है, शायद रिपीट हो गया ये चार्ट। पंप से अब बात करते हैं, पंप को भी उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। तो पंप में कहां से क्वेश्चन आएंगे, पीएम कुसुम से मोस्ट चांसेस है क्वेश्चन आएंगे। कौन से कंपोनेंट में कौन सा पंप कवर हो रहा है, यूनिट टू कवर। एंड असिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि सोलर बेस्ड मान लो पंप लेना फार्मर को, कितना परसेंट असिस्टेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज्यादा डीप जो टेक्निकल टर्म है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फॉर दे आस्क, बट जनरल के लिए बस यही इसी एरिया से क्वेश्चन आएंगे, या तो पीएम कुसुम से आएंगे या असिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वाटर पंप से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जनरलिस्ट आप छोड़ सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट। यस, पीएम कुसुम को मैंने मेंशन कर दिया, कितने हॉर्स पावर का चाहिए ये पूछ सकते हैं, कितना परसेंट सब्सिडी है ये पूछ सकते हैं, किस कंपोनेंट में किस टाइप ऑफ पंप आते हैं, स्टैंड अलोन, ग्रिड कनेक्टेड, रिन्यूएबल पावर प्लांट, ये थोड़ा ध्यान से आपको देख लेना है। ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट, अगेन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कमांड एरिया, तो इसको थोड़ा सा देख लेना है। ग्रॉस कमांड एरिया जो होता है उसमें सारे कुछ आ जाते हैं, फॉरेस्ट भी आता है, बैरन लैंड भी आता है, वेस्ट लैंड भी आता है, बट हम जब नेट की बात करते हैं उसमें बस कल्टीवेबल लैंड आता है। तो ग्रॉस जो है दैट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ लैंड। ठीक है, मेक इट क्लियर, वेरी क्लियर। इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज, तो ये नेम ही से पता चल रहा है कि आपने कितना इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट कर दिया और उस क्रिएशन को आप कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो। दिस आर दी टू इंपॉर्टेंट, जो अभी जनरली न्यूज़पेपर्स में ये दोनों टर्म काफी डिस्कस हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आर्टिकल मैंने द हिंदू से लेके दिया आप लोगों के लिए प्रेजेंट इश्यूज में, उसको आप थोड़ा सा जाके देख लेना, यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट आर्टिकल इन दिस लिंक। चलो ये सब सारा कुछ हो गया। हाँ, व्हेन यू विल विजिट दी पीएम सिंचाई योजना, वहां पे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में दिया हुआ, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, वो थोड़ा सा देख लेना, लाइक जावो एंड ऑल दोस थिंग, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है किसान सिंचाई योजना वाले ऑफिशियल साइट में। तो आप जब आप कंपोनेंट्स वाले पार्ट को क्लिक करोगे तो वहां पे दे हैव गिवन कि ट्रेडिशनल जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उनके क्या क्या नेम है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो उसको थोड़ा सा आप कवर कर लीजिएगा। दिस क्वेश्चन आई हैव आल्सो आस्क्ड इन योर असेसमेंट टेस्ट, तो उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। जैसे काकतिया मिशन, शिविर योजना, जल शक्ति अभियान, इन सारी चीजों को आपको कवर करना। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, जस्ट इसके डेफिनेशन को जानिए कि हर लोगों के पार्टिसिपेशन, जो भी इसके यूज कर रहे हैं वाटर को, ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट्स ओवर हियर, डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पानी पंचायत एक्ट जो है पहली बार ओडिशा में पास किया गया था, दैट इज इन ईयर 2002। और क्या इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल आई वाज टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू आईपीसी एंड आईपीयू, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल, दिस वैल्यू यूनिट रिमेंबर, इसको याद रखना है। ये मैक्सिमम हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं अपने इरिगेशन को लेके। अभी कितना है, व्हाट इज द इरिगेटेड एरिया नाउ, एनीबॉडी विल कमेंट, व्हाट इज द प्रेजेंट इरिगेटेड एरिया, व्हाट परसेंट ऑफ दिस? 49, सुमित इज सेइंग 49, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और पीआईबी हमेशा ये आते रहता है ये फिगर 48 पॉइंट समथिंग इज देयर, 48.7 और समथिंग इज देयर, 49 आप याद रखिए, 49% इज इरिगेटेड एरिया आउट ऑफ ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड्स। ठीक है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे यहाँ पे ले लिया एग्रीकल्चर सेंसस 2010 एंड 15 से, इसलिए लिया गया क्योंकि मेंस में पिछले साल लास्ट ईयर मेंस दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से उन्होंने लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन पूछा एग्रीकल्चर सेंसस 2010 में। क्यों एग्रीकल्चर सेंसस 2010 से पूछा? क्योंकि 2015 एग्रीकल्चर सेंसस डू नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। 2010 सेंसस में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, कहाँ पे किस टाइप का इरिगेशन है, किस स्टेट में ट्यूबवेल ज्यादा है, किस स्टेट में वेल ज्यादा है, किस में कैनाल ज्यादा है, तो सारे को ऑलरेडी आई हैव समराइज्ड इट फॉर यू, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, और परसेंटेज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम को। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेंसस, इसको एक बार देख लीजिएगा। वाटर गजलिंग क्रॉप्स इकोनॉमिक सर्वे में कवर्ड है। शुगर केन एंड पैडी आर द मोस्ट वाटर गजलिंग क्रॉप्स। 1 kg पैडी प्रोड्यूस करने में कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा वेरी करता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू 2500 टू 3000 तक वेरी करता है, इसको थोड़ा सा याद रखना। वाटर फुटप्रिंट, जो भी हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज, वाटर कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में, दैट इज वाटर फुटप्रिंट। एग्रीकल्चर में बोथ ग्रीन वाटर फुटप्रिंट एंड ब्लू वाटर फुटप्रिंट बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, दोनों को काम आता है। ठीक है, रिवर बेसिन से भी ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड, नबार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस। तो रिवर बेसिन में आपको याद रखना है जो मैक्सिमम पोटेंशियल हम यूज कर सकते हैं वो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन को यूज कर सकते हैं, और एरिया के टर्म्स में अगर कवरेज की बात की जाए तो गंगा का सबसे ज्यादा है। तो पोटेंशियल अगर इफ दे आस्क इन द क्वेश्चन देन ब्रह्मपुत्र विल बी द राइट आंसर। इफ दे आस्क अबाउट द कवरेज इन टर्म्स ऑफ एरिया देन गंगा बेसिन विल बी द राइट आंसर। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, टीएनयू में भी ये कवर्ड है, और पीआईबी में भी कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था, उसमें भी ये सारा चीज कवर्ड था ऑलरेडी वो दिया। तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है, और एक साल उन्होंने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रखा है। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड। तो इसके लिए आपको याद रखना है कितना होता है 15 ईयर्स का जो टेनर होता है, इसको याद रखना है। अच्छा, इसमें से और एक अभी जो पीआईबी में न्यूज आ रहा है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड में, इसमें इंटरेस्ट जो है कितना तक सबवेंशन दिया जाता है, अप टू मैक्सिमम कितना परसेंट तक हो सकता है। व्हाट विल द वैल्यू फॉर दिस लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड जो स्टेट को हम देते हैं 6% है, या सौमिश्री इज वेरी राइट, 6% तक सबवेंशन किया जा सकता है। 3% से यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम इट कैन गो टू द 6%। आई थिंक कुछ दिन पहले भी पीआईबी का आर्टिकल आया रिलेटेड टू दिस ऑन लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, जहाँ क्लियरली मेंशन किया गया कि 6% तक आप सबवेंशन कर सकते हो जो स्टेट्स को यहाँ से लोन आप दे रहे हो। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स रिलेटेड टू इरिगेशन जहां आपको फोकस करना, और इनसे रिलेट करके मैंने बहुत 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 अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रखे हैं पावर प्ले में, तो वहां जाके प्रैक्टिस कीजिए इसको देखने के बाद। दोस्त हु हैव गिवन, फिर आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, अब देखना आपको सारी चीजें अब याद रहेंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क, और एल्स आई विल एंड दिस सेशन। और आज के टेस्ट जो है आई विल ट्राई टू अपलोड इट लेट नाइट या कल मॉर्निंग तक करूंगा, आज जो टेस्ट शेड्यूल थे कल तक करूंगा। ठीक है, anything else you want to ask? ERD session I will upload, उसमें that I haven't recorded, that is the problem. I will try to retake it because that is very 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 important. ERD session 3 is very important. ठीक है, चलिए then, thank you everyone. Try to appear for the test, revise कीजिए, इससे deep question नहीं आएंगे खास करके प्रेजेंस में आपके। फैक्ट आई टोल्ड यू दीपक, लिंक करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, लिंक करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, किसके बाद क्या आ रहा है, और सारे फैक्ट्स मत याद रखिए, एटलीस्ट वो याद रखिए जो अभी करंटली न्यूज में कवर्ड है, उनको आपको याद रखना, सारे नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो, दिस आई हैव रिकॉर्डेड, दिस आई विल अपलोड इन दी यूट्यूब। चलो, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।